Good evening, everyone. Today we are proceeding with the Unit 3 of Company Law, and the Unit 3 title is Capital and Financing. And specifically, which we are going to cover today will be types of capital. In this, we are going to cover all the types of share capital that a company has, and then the share and debenture issues, and then the public and private offerings as well. We have covered Unit 1 and 2 already, and the notes of Unit 1 and 2 are already uploaded. And this is going to be the session is designed according to your CLAT exam, CLAT PG exam specifically. Please make sure all the notes of these sessions have already been uploaded. You can obviously access these notes. So firstly, we have to understand what exactly is capital, and then we'll proceed with the types of capital. So when we study what is capital, before that, I will explain you. For example, there is a company, there's a person, let's say this is a person A, and he wants to start a company. Okay. Then to start a company, A needs certain amount of money, right? To start this particular company. You cannot start a company without any amount. तो जो मनी जो है यही कैपिटल होता है यहाँ पे, कैपिटल चाहिए होगा यहाँ पे. अब वो जो कैपिटल लगाएगा कि वो हाउ कैन ही actually get hold of so much of capital, right? So what he will do, what A will do, A will actually he can what let's see this is the amount he will ascertain that how much capital, how much amount would he need to build a company, to establish his company. So let's say he requires 10 lakh amount to establish a company. Now this 10 lakh rupees is the capital, but now A cannot single-handedly arrange this particular amount to start his business. Then what will he do? He will just bifurcate this 10 lakh amount into various parts. Okay, let's say 10 parts, 7, 8, 9 and 10. तो 10 पार्ट्स में उसने ये 10 लाख का बांट दिया. और जो डिवीजन ऑफ ये लाख, डिवीजन ऑफ जो अमाउंट हुआ है उसको हम बोलेंगे शेयर, ईच डिवीजन. तो ये जो शेयर है, फिर व्हाट ही विल डू, he will put it on to open that anybody can buy these shares. Whoever will be buying these shares, so in this the particular person will become a shareholder. He will or she will hold a ownership in the company in terms of whatever, how much amount of share he holds. So, and in terms of share, the person will be liable if it is limited by share company, right? We have already discussed what kind of companies do we have. And if the person is if the person is sure, if the company comes to so much of profit, the particular shareholder will receive as much amount of profit as he has his percentage in terms of share. Okay. So this is what share is. So, and this 10 lakh amount is the capital here. So capital amount is that only, but different types of capital amount भी हो सकती हैं. पहले हम उसको उस वर्ड में समझते हैं. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. तो ये जो 10 लाख है ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये जो इसका पार्ट है दैट इज पर शेयर मेड बाय द पीपल टू द कॉमन स्टॉक. ये 10 लाख कॉमन स्टॉक है ऑफ द कंपनी, इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी. सो ये 10 लाख जो कॉमन स्टॉक है ये हमारा कंपनी का कैपिटल है, इस कंपनी का, जिसका ओनर कौन है ए. फर्दर अ शेयर इज प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल. तो ये जो शेयर है, ये शेयर क्या है, इस कैपिटल का प्रपोर्शन है. दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड, राइट? To the capital to which each member has entitlement, जिसने जितना खरीदा. Remember, a share is not an amount of money. ये कोई amount of money नहीं है, ये basically एक certificate share आपको दे दिया जाता है. It's not amount. ये share आपका पैसा नहीं होता है, ठीक है? It is interest including different rights on the contract. जो rights होते हैं वो आपके contracts में आपको, जो भी शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये मेंशन होता है. फिर क्या है कि जो कैपिटल होता है वो 5 तरीके का होता है. एक तो नॉमिनल होता है, इशूड होता है, सब्सक्राइब होता है, कॉल्ड अप होता है, पेड अप होता है. जब हम नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल कैपिटल वो कैपिटल होता है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ. नॉमिनल कैपिटल वो होता है जो ये जो कंपनी है, मान के चलो कि ये जो 10 लाख का है अमाउंट, दिस इज द नॉमिनल कैपिटल, ठीक है. इशूड कैपिटल क्या होता है,
मतलब नॉमिनल कैपिटल होता है जब हम कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए जाते हैं, तो उसमें वन ऑफ जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी फाइल करने जाते हो, तो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है विच इज कैपिटल क्लॉज, ये आपको क्लॉज ऐड करना पड़ता है जिसमें आप बताते हो कि आपकी कंपनी का कैपिटल कितना होगा। तो उसमें जो कैपिटल होता है 10 लाख लिखता है, और अब ये जो कैपिटल है 10 लाख, ये आपका नॉमिनल कैपिटल है। और जो 10 लाख, अब क्या होगा अगर कोई कंपनी ने 10 लाख से ज्यादा का कोई शेयर मतलब बेच दिया, तो वो उसका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइज जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो वो अल्ट्रा वाइज हो जाएगा ये। ठीक है, तो इशूड कैपिटल क्या होता है, जितना कंपनी ने, आप इसको नॉमिनल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 2(8) में नॉमिनल मेंशन है नॉमिनल कैपिटल के बारे में। कैपिटल दैट द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी ऑथराइजेस एज अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जैसे मैं जो 10 लाख का एग्जाम्पल दिया था, तो वो था। हेंस इट इज द रजिस्टर्ड अमाउंट ऑथराइज्ड दैट कैन बी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स। अब आप क्या करोगे, उससे ज्यादा अमाउंट आप इशू नहीं कर सकते शेयर्स के। अगर आपने 10 लाख का, तो आपका नॉमिनल शेयर है, बट आपने 15 लाख का शेयर्स इशू कर दिए, तो वो आपका अल्ट्रा वाइज हो जाएगा। द कंपनी ऑल्सो पे स्टैम्प ड्यूटी इन दिस अमाउंट। Typically, you can calculate nominal capital by taking into consideration the working and reserve capital. Typically, you can calculate nominal capital by taking into consideration the working and reserve. जितना भी आपको कैपिटल जरूरत है और रिजर्व कैपिटल जितना कंपनी में है। जैसे कि 10 लाख में से आप 4 लाख कंपनी को रन करने में लगा रहे हो, बाकी जो आपका 6 लाख है वो रिजर्व्ड है। तो इस हिसाब से भी आपका नॉमिनल कैपिटल आप कंसिडरेशन में ला सकते हो, दोनों को ऐड करके। ठीक है, इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब इशूड कैपिटल मतलब क्या है, 10 लाख का है, और 10 लाख में से कंपनी ने शेयर कितने के इशू कर दिए, 10 लाख में से कंपनी ने मान के चलो 5 लाख के ही शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, तो वो जो 5 लाख के शेयर्स इशू करे हैं, मतलब कि 5 लाख के लोग आए और 5 लाख के शेयर खरीद लें। ठीक है, सिर्फ 5 लाख के, बट बाकी 5 लाख अभी इशू नहीं करा है, वो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब लोग जितना 5 लाख का अमाउंट जो खरीदेगा शेयर्स 5 लाख के, और जितना 5 लाख रुपए अमाउंट आ जाएगा कंपनी के पास, तो 5 लाख का अमाउंट क्या होगा, हमारा कंपनी का कैपिटल होगा, उसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, तो इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर द सब्सक्रिप्शन, कि आप सब्सक्रिप्शन के लिए आप डाल सकते हो। दिस इंक्लूड्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो जाएगा, सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफर्स दिस डेफिनेशन फर्दर। इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू डिस्क्लोज इट्स इशूड कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इस चीज को मेंशन करें कि कितना मैंडेटरी है, कितना अमाउंट आपका आपका कितना अमाउंट लगता है। ठीक है, इशूड है आपका। अब सब्सक्राइब्ड में क्या है कि मान के चलो कि उन्होंने 10 लाख में से 5 लाख का जो करा था, तो 5 लाख में से आप हो सकता है कि उसमें से सारे के सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा होगा, उसमें से हो सकता है कि सिर्फ 4 लाख लोगों ने ही इशूड में से, इशूड कैपिटल हमारी 10 लाख में से 5 लाख थी। ठीक है, 10 लाख का जो हमारा टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल था, जिसको बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल, इसमें से 5 लाख का अमाउंट इशू करा, तो वो इशू कैपिटल हो गई। 5 लाख के अमाउंट में से 4 लाख लोगों ने ही उसको खरीदा, मतलब 4 लाख के शेयर ही लोगों ने सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब करा, तो ये 4 लाख का जो शेयर जिसको खरा, जो 4 लाख का जो अमाउंट होगा, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाया जाएगा। 5 लाख का इशूड कैपिटल कहलाया जाएगा, और इसको रजिस्टर्ड। ओके, तो ये सबसे पहले तो 286 में मेंशन है कंपनीज एक्ट के। Define subscribed capital as a part of capital being subscribed by the members of the company, जो इसे खरीद लेंगे। ठीक है, इट इज अ नंबर ऑफ शेयर दैट आर पब्लिक, इसको जिनको बाय करती है। जैसे 5 लाख जो इशूड था कैपिटल, उसमें से 4 लाख के शेयर्स ही लोगों ने सब्सक्राइब करे। तो further, if the company states authorized capital in any communication like notice, advertisement, official business letter, etc., then it all has to also specify subscribed and paid up capital in the equally conspicuous place. वो भी उनको ओपन एंड आउट उनको मेंशन करना पड़ेगा, उसको छुपा नहीं सकते। किस चीज को, पेड अप कैपिटल को और सब्सक्राइब्ड कैपिटल को। देखो, पेड अप कैपिटल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। Also, Section 60 of the Act specifies that defaulters in this regard, the company and all officers who default will be fined. अगर उन्होंने इसको कॉन्स्पिशियस उसमें तरीके से इसको ओपनली नहीं बताया, नोटिस के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि कितना शेयर सब्सक्राइब कैपिटल है, तो उनपे ये फाइन भी पड़ सकता है, कितना, 10,000 और 5,000 रुपए का रिस्पेक्टिवली। और ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 60 ऑफ हमारा कंपनीज एक्ट में। ओके,
नाउ द नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? According to section 2 clause 15 of the Companies Act, called up capital is a part of the capital. ये ऐसा part of the capital है which the company calls for the payment and is the total amount the company calls up or issues. तो called up मतलब क्या होता है? मान के चलो कि अभी 5 लाख में से 4 लाख 10 लाख का पूरा अमाउंट था, 10 लाख का पूरा अमाउंट था जो पेड अप था. ठीक है, सॉरी पूरा नॉमिनल अमाउंट था. कितना? नॉमिनल अमाउंट. ठीक है. देन आपका नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें से 5 लाख का उसने इशू कर दिया, 5 लाख का शेयर इशू कर दिया, तो वो इशूड कैपिटल हो गई. ठीक है. उसके बाद इशू में से 4 लाख लोगों का सब्सक्रिप्शन के थ्रू आया, तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया. फिर सब्सक्राइब कैपिटल मान के चलो कि 4 लाख का था ना, तो 4 लाख में से कभी कभी कंपनी के पास ये भी ऑप्शन होता है कि 4 लाख में से वो बोलते हैं कि सिर्फ 2 लाख रुपए ही आप अभी दो, बाकी 2 लाख सब्सक्राइबर से बोला कि अभी आप अपने पास ही रखो, अपने शेयर्स कैपिटल के जो सर्टिफिकेट्स दिए हमने वो अपने पास ही रखो. जब कंपनी को ऐसी नीड आएगी देन कंपनी उस टाइम पे ये अपना 2 लाख का जो अमाउंट है वापस मांग लेगी, इज व्हाट दे आर सेइंग. 2 लाख का अमाउंट कंपनी वापस मांग लेगी जब ये जो शेयर कैपिटल है, ये जो 4 लाख का जो अमाउंट है, ये 4 लाख का अमाउंट में से 24 से 2 लाख दो, क्योंकि 2 लाख का ही बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए कंपनी को सिर्फ अभी 2 लाख रुपए की जरूरत है. इशूड कैपिटल 4 लाख हो चुके हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, तो कंपनी ये ऑप्शन देती है कि मेरे जो 4 लाख रुपए के जो शेयर्स बिक गए थे उनमें से सिर्फ 2 लाख रुपए ही मुझे अभी चाहिए, और बाकी का जो 2 लाख रुपए है जब जरूरत होगी तो कंपनी तब ले सकती है. तो इन 4 में से जो 2 लाख रुपए का अमाउंट होगा वो कंपनी क्या करेगी? कॉल्ड अप कैपिटल बोलती है. रीड करते हैं. सबसे पहले बताओ 2 clause 15 में मेंशन्ड है कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच द कंपनी कॉल्स फॉर द पेमेंट. कि कहते हैं कि अभी सिर्फ जितना भी सब्सक्राइब, ये पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब, कॉल्ड ऑफ कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. जितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिसीव हुआ है उसमें से कंपनी एक टाइम पे सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल को कॉल करेगी और रेस्ट तब करेगी जब उसको नीड होती है. दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल इन सिंपल टर्म्स. ओके. Then we have the last one is paid up capital. Paid up capital is a part of called up capital. देखो ये called up capital का होता है. Actually paid. अब पेड अप क्या है कि जितना कॉल करा गया, अब कॉल कितना करा गया कि आप 2 लाख रुपए ही करो. अभी 4 लाख में से 4 लाख का जो सब्सक्राइब था उसमें से 2 लाख पे करो. पेड अप जब 2 लाख हुआ तो ये अमाउंट जो 2 लाख का है लोगों ने उसमें से अभी 1 लाख रुपीज ही पे करे, तो दिस 1 लाख रुपीज उस टाइम पे कॉल्ड अप कैपिटल. जितना लोगों सॉरी पेड अप कैपिटल, जितना लोगों ने जब कंपनी ने मांगा जितना अमाउंट उतने में से जितने लोगों ने पे करा, तो जितना लोगों ने एक्चुअली पे करा और क्रेडिट बाय शेयर होल्डर्स ऑन द इशूड शेयर्स. तो मैथमेटिकली पेड अप कैपिटल में से अगर आप कॉल्ड अप कैपिटल्स को माइनस क्या होगा, कॉल्ड अप कैपिटल्स में से कॉल इन एरियर्स होगा. तो पेड अप कैपिटल रिप्रेजेंट द मनी दैट द कंपनी हैज नॉट बोरोड. अभी पेड अप क्या है? जो भी बोरो नहीं करा है. ऑल्सो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी रिसीव्स फ्रॉम शेयर होल्डर इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक. जितना अमाउंट वो करते हैं, जितना उसने अमाउंट रिसीव करा है उतना हमारा पूरा पेड अप कैपिटल होता है. तो ये हमारे इसके 4 तरीके के 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं हमारे, जिनमें से फर्स्ट इज द नॉमिनल कैपिटल, then is the issued capital, then is the subscribed capital and the called capital and paid up capital. तो ये इस एक चेन से अगर आप इसको समझोगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ आ सकता है. ठीक है. The next is meaning of shares. अब शेयर्स क्या होते हैं? मैंने आपको शेयर बताया था कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि अमाउंट नहीं होता है. मान चलो कि कंपनी में किसी ने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, तो वो एक सर्टिफिकेट फॉर्म में उसको मिल जाएगा, बट ये अमाउंट नहीं होता है. अब जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का लॉस, अगर कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है, तो लॉस और प्रॉफिट के लिए वो लायबिलिटी उसकी पता है किस हिसाब से बनेगी? उस हिसाब से बनेगी जिस हिसाब से इसका शेयर होल्ड करता है जो भी शेयर होल्डर. एग्जैक्टली. मीनिंग क्या है? एनी टाइनी पार्ट ऑफ फर्म्स कैपिटल. मतलब मैंने आपको बताया था कि कंपनी को चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे, तो 10 लाख रुपए कैसे उसने अरेंज करे?
10 लाख रुपए को उसको कैसे अरेंज करना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए को अरेंज करने के लिए उसने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिए करीब 10 पार्ट में। ठीक है, ये 10 पार्ट में उसने डिवाइड करे हैं। अब जो 10 पार्ट्स ईच हैं ऑफ व्हाट, 10 लाख का कैपिटल, ये सब इंडिविजुअली शेयर्स हैं जिनको सब बाय करेंगे, और जो उसके बाय करने पे जो पैसा मिलेगा वो 10 लाख रुपए के बराबर होगा, क्योंकि उसने इन्हीं 10 लाख को 10 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। और जो पैसा मिलेगा तो फिर वो अपने बिजनेस को रन कर सकता है, ये प्रॉफिट जो आएगा वो शेयर कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा बिजनेस रन होता है। तो मीनिंग ऑफ शेयर्स सिंपल यही है। मीनिंग ऑफ शेयर्स क्या है कि टाइनी पार्ट होता है, ये बहुत टाइनी पार्ट होता है। किस चीज का टाइनी पार्ट? फर्म का जो कैपिटल अमाउंट है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था 10 लाख का जो कैपिटल अमाउंट यहाँ पे था, उसको मैंने 10 डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिए हैं। तो ये जो 10 डिफरेंट पार्ट्स हैं ये कैपिटल फर्म का कैपिटल होता है। Okay, so a tiny part of a firm's capital is identified as shares and is usually sold in the stock market. किस लिए? फंड रेज करने के लिए। और फंड किस लिए? अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड का जरूरत होती है। ये 10 लाख रुपए बिजनेस को चलाने के लिए तो है ना, इस बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज। द प्राइस एट विच द इन्वेस्टर बाइज द शेयर इज नोन एज शेयर प्राइस। अब ये जो एक शेयर है वो कितने प्राइस पे खरीदा, मान के एक शेयर उसने 100 रुपए का बेच रहा है वो, तो ये मान के चलो 100 रुपए का अगर ये बेच रहा है, या मान के चलो 1000 रुपए का बेच रहा है, या ऐसा करके बेच रहा है, ठीक है। तो ये 100 रुपए का जो एक शेयर है, तो इन टोटल जो भी, तो 1 शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज, ऐसा करके। या फिर सॉरी, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, अगर ऐसा है तो 10 शेयर आर इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज। तो ये ऐसे हो गए। तो जो शेयर प्राइस है वो ऐसे होता है कि जो जो प्राइस जिसपे एक इन्वेस्टर, यहाँ पे इन्वेस्टर फर्दर जो शेयर होल्डर बन जाता है, known as share price. Now the shareholder are qualified to receive the dividend, और ये जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड रिसीव करने का पूरा हक होता है, क्योंकि उन्होंने जितना शेयर खरीदा होता है उस हिसाब से उनको डिविडेंड रिसीव हो जाता है हर मंथली बाय मंथली। ठीक है, एज मेंशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन ने ये मतलब क्या है, अपने एमओ चार्टर में जिस हिसाब से अपना मेंशन करा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिस हिसाब से मेंशन होगा कि कितना अमाउंट उसको पे करा जाएगा, तो उस हिसाब से ये भी डिसाइड होता है। द शेयर्स आर ट्रांसफरेबल या मूवेबल, एक शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के साथ रहती है। बट अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इजी होता है। एंड ब्रॉडली अब शेयर्स जो हैं वो दो तरीके से डिफाइन करे गए हैं, एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। सेक्शन 47 सब क्लॉज 1 इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या करते हैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर में क्या होता है कि ये अपना वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं, जिसका जितना शेयर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 ऑफ किसका, सेक्शन 50, every member of a company limited by share and holding equity share capital therein shall have a right to vote on every resolution placed। तो right to vote कहाँ मिल गया है, हर resolution में, बिफोर द कंपनी। एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि उसका जो वोटिंग राइट है ऑन द पोल शैल बी प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जितना उसका शेयर कैपिटल का पे उसका राइट पड़ता है, जितना उसने शेयर होल्ड करे होते हैं, उस हिसाब से ही हिज वोटिंग राइट उसका उतना ही बनता है जितना उसका शेयर उसने कंपनी का लिया होता है, पेड अप शेयर कैपिटल जितना उसका होता है। ठीक है, मान के चलो कि उसका 1 लाख रुपए का शेयर बाय करा, ठीक है, 1 लाख रुपीज का, बट 1 लाख रुपीज में से उसने अभी सिर्फ 50 लाख रुपए ही पे करा है, तो 50 लाख रुपए तक का ही प्रोपोर्शन, इस अमाउंट का ही जो कैपिटल पे उसके वोटिंग राइट्स प्रोपोर्शनेट होंगे। अब अगर हम रूल 4 पढ़ें किसका, कंपनीज रूल्स 14 का, इक्विटी शेयर जो प्रिस्क्राइब करता है, उसमें डिफरेंट सारे राइट्स दिए होते हैं, और फिर फर्दर उसमें प्रोसीजर दिए गए हैं कि हम किस तरीके से इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं, और उसके साथ कितने डिफरेंट राइट्स भी होते हैं।
ओके, तो उसमें से सबसे पहला तो ये है that no company, whether it is unlisted या listed or a public company limited by share, कोई भी इनमें से हो, उनका काम क्या है कि वो अपना इशू करेंगी, क्या इक्विटी शेयर को इशू करेंगी। उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो राइट्स हैं डिविडेंड से रिलेटेड, जिसकी जितने राइट्स होल्ड करता है वो भी मेंशन होगा। वोटिंग राइट्स हैं या नहीं है, किस लेवल तक रहेंगे, वो भी सब मेंशन होगा। और ये तब तक अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। अब क्या है, मतलब अगर उन्होंने उस कंपनी ने ये जो अभी गिवन 5 कंडीशन को फुलफिल कर लिया, तो उसको फिर ये काम करने की, ये इशू करने की जरूरत नहीं है, इक्विटी शेयर्स ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट उसमें क्या है, नंबर 1, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी authorizes the issue of share with differential rights। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथराइजेज द इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंट, वो ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही आपने मेंशन कर दिया। दूसरा क्या है, दैट द इश्यू ऑफ शेयर्स इज ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन passed at a general meeting of the shareholders, provided that where the equity shares of a company are listed on the recognized stock exchange, the issue of such shares shall be approved by the shareholders through postal ballot. So if the authority, if the shares are issued, if the issue of shares are authorized, जो मैंने कहा था कि आपको रेजोल्यूशन जो होते हैं, जो पास किए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसमें शेयर होल्डर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें अगर उस रेजोल्यूशन में ही ये चीज मेंशन कर दी गई है दैट दिस मच अमाउंट विल बी यूज्ड एज अ टू विल बी इशूड इन टर्म्स ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, ये राइट्स होंगे हर एक शेयर होल्डर्स के, तब भी। थर्ड है कि द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स शैल नॉट एक्सीड, अगर 26% ऑफ द टोटल पोस्ट जितना इशू करा है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें से 26% आप डिफरेंशियल राइट्स, आप इससे ज्यादा 26% से ज्यादा डिफरेंशियल राइट्स आप नहीं इशू कर सकते, इंक्लूडिंग उसमें से इक्विटी शेयर्स भी होंगे विद डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट दैट पॉइंट, वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल और पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल में भी। नेक्स्ट है कि द कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 3 साल प्रीवियस 3 साल का उसके पास कंसिस्टेंट अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को अच्छे से जितना मेंशन्ड है उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक कंप्लायंस होता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको फाइल करनी होती है, राइट, दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू बी फाइल्ड, एंड एनुअल रिटर्न भी आपको फाइल करना पड़ेगा। और जो ये देखना पड़ेगा कि अगर प्रीवियसली 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपने कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनुअल रिटर्न फाइल करने में, तो भी ये आप इसमें बच जाएंगे, आपको ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करनी पड़ेंगी। तो दिस वाज द इक्विटी शेयर। नाउ हम आते हैं प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल पे। Now this is preferential share capital. Now as per explanation, अगर हम 42 ऑफ सेक्शन पढ़ें किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का, तो ये शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है प्रेफरेंशियल शेयर जो विच द होल्डर हैव द प्रेफरेंशियल राइट। अब जब मैंने आपको बात करी थी इक्विटी की, इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट्स होते हैं, और वो डिफरेंशियल राइट्स कैसे होते हैं, बेस्ड किस बेस होते हैं, जिसने जितना शेयर होल्ड करा उसके बेसिस पे। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जब हम बात करते हैं तो वो इसमें क्या होता है, होल्डर ऑफ द शेयर कैपिटल के पास, शेयर के पास, मतलब शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट हो जाता है, वो होल्ड करता है, डिफरेंशियल राइट नहीं होल्ड करता, जिसको वो दिया जाता है। ये डिपेंड नहीं करता कि उसने कितना शेयर कैपिटल खरीदा है, उस बेसिस पे प्रेफरेंशियल राइट शेयर राइट नहीं होता उसका। तो होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ड्यूरिंग पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन द इवेंट ऑफ कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे, जब इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस टाइम पे उसका ये मैंडेटरी होता है। नाउ द होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल
टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने होते हैं? देखो, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स ऑफ डिविडेंड, जितना भी जिसका राइट डिविडेंड राइट है, क्यूमुलेटिव हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। फिर कन्वर्टेबिलिटी की बेसिस पे भी होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसमें कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। फिर आपका है ऑन द बेस ऑफ मेच्योरिटी पीरियड, कब कोई शेयर कब मेच्योर हो रहा है, तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी होता है, ठीक है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, इसका जितना राइट बनता है कि वो किसी सरप्लस प्रॉफिट में कितना अमाउंट वो के लिए वो लाइबल है, कितना उसका राइट बनता है, तो उसमें पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर भी होता है। ये आपके एग्जाम में इतना आएगा नहीं, जस्ट आपको एक हल्का सा जिस्ट ले लो उसमें क्या है, इट वोंट कम इतना ज्यादा। नाउ द नेक्स्ट इज, हमने कैपिटल डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ कैपिटल डिस्कस कर लिया, देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ कैपिटल, we have discussed shares, types of shares, equity shares and debenture and preference share. Now the next which we will be covering will be debentures. मीनिंग क्या होता है डिबेंचर का वो समझते हैं। देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो ए पर्सन था जो अपनी कंपनी खोलना चाहता था, बट उसके पास मनी नहीं था, तो उसने क्या करा, उसने जो कंपनी खोलना चाहता था और कंपनी को खोलने के लिए 10 लाख का अमाउंट चाहिए था, इस अमाउंट को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। बट ए के पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने 10 लाख के कैपिटल को 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या जितने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उनको इसने मार्केट में इशू कर दिया कि जितने लोग इन शेयर को बाय करेंगे और बाय करने पर जो पैसा देंगे, उस जो पैसा इकट्ठा होगा 10 लाख के बराबर, वो कंपनी उससे रन कर ली जाएगी, ठीक है। जो उनको बोलते हैं शेयर कैपिटल, शेयर बोलते हैं, ये क्या है, ये शेयर्स है। डिबेंचर में क्या होता है, अब देखो डिबेंचर की स्टोरी डिफरेंट है। डिबेंचर में जो ए पर्सन था जो कंपनी खोलना चाहता था और उस कंपनी को चलाने के लिए उसको 10 लाख रुपए चाहिए थे, बट अब उसको पता है कि कोई भी शेयर के थ्रू काम नहीं हो पा रहा, तो उसके पास दूसरा क्या तरीका है कि वो लोन की तरफ जाए। अब वो बैंक के पास जाता है तो बैंक उसे मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारा तो प्रीवियस रिकॉर्ड खराब है, कुछ ऐसा बोल देता है कि मैं तो नहीं करने वाला, बैंक नहीं दे रहा है। तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, तो वो जो ये 10 लाख जो है उसके अगेन वो डिफरेंट पार्ट्स कर देता है, डिफरेंट पार्ट्स कर देता है, और उसको लोन की फॉर्म में बहुत सारे लोगों से ले लेता है, ठीक है। तो एक पर्सन ने ये जो डिबेंचर खरीदा 1 लाख का, मान के चलो, तो 1 लाख रुपए इसके पास इस कैपिटल में आ गए। ऐसे जितने लोगों ने खरीदा उतना पैसा यहाँ पे आ गया, और जब कंपनी इस जब पैसा कमाएगी अपने बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू, तो इन लोगों को लोन तब पे हो जाएगा। तो ये है डिबेंचर। और शेयर में जो मैंने आपको बताया था, ये आपका शेयर है और ये है डिबेंचर। इसमें डिबेंचर में जो डिबेंचर होल्डर होता है उसको हर मंथ अपना पैसा मिलता रहता है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि लोन है ना, डिबेंचर इज नथिंग जस्ट अ लोन, ठीक है। मीनिंग देखते हैं इसका। अ डिबेंचर इज अ डेट टूल यूज्ड बाय द कंपनी। तो ये जितने लोग हैं सारे क्रेडिटर्स हो गए, जितने भी लोन बाय करा जिन्होंने। तो डिबेंचर इज अ डेट टूल यूज्ड बाय अ कंपनी दैट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। अब जो लोन है ये बहुत ही रिसेंटली हो सकता है कि बहुत टाइम बाद इस लोन को रिपे कर दें। नाउ हियर द फंड इज, यहाँ पे बोरोड कैपिटल होता है, ये कैपिटल बोरोड है ना। शेयर में वो बोरोड नहीं था, वो लोग खुद उस पर इन्वेस्ट करे थे उसकी कंपनी में, विच मेक्स द होल्डर ऑफ डिबेंचर अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। जो भी डिबेंचर होल्डर होगा उसको या तो आप क्रेडिटर बोल दो या डिबेंचर होल्डर बोल दो। यार डिबेंचर आर बोथ रिडीमेबल, डिबेंचर क्या है, रिडीमेबल हो सकता है और अनरिडीमेबल भी हो सकता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल भी हो सकता है विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। It is secured and sustained by the issuer's creditability. जिसने भी उसको इशू करा होता है डिबेंचर को, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सिक्योरिटी उसकी होती है। Unlike shareholders, the debenture holder who are the creditor of the company do not hold any voting right. Shareholders जो होते हैं उनका वोटिंग राइट होता है, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। वो मेयर क्रेडिटर्स होते हैं। द डिबेंचर होल्डर्स इतने टाइप के हैं, 6 टाइप के।
secured debenture, convertible debenture, unsecured debenture, registered debenture, non-convertible debenture and bearer debenture. अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है कि परफॉर्मेंस बेस्ड डिबेंचर, इसमें भी दो टाइप के हैं, रिडीमेबल एंड नॉन एंड इरिडीमेबल. अब बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. फर्स्ट है redeemable debenture are the debentures where the date of redemption of the debenture specifically mentioned in the debenture certificate. जो debenture certificate देते हैं जिसके बेसिस पे उसको पैसा वापस मिलता है उस debenture पे, तो उस डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें रिडेम्पशन का डेट लिखा होता है. ठीक है, वेयर ऑन सच डेट द कंपनी इज लीगली बाउंड टू रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट टू द डिबेंचर. ना प्रिंसिपल अमाउंट अगर उसने 1 लाख रुपए दिए थे तो 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट और फिर इंटरेस्ट अमाउंट भी अलग होगा. तो इंटरेस्ट तो बाद में देते हैं, लेकिन इस टाइम तक उसमें लिखा है कि ये अमाउंट. तो रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, जहां पे पहले से ही आपका मेंशन्ड है डिबेंचर सर्टिफिकेट में कि इस दिन को कंपनी लीगली बाउंड होगी कि वो अमाउंट आपका एटलीस्ट किसका प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको दे ही दे, पे बैक कर दे. इरिडीमेबल डिबेंचर कॉन्टिन्यूड फॉर, ये क्या होते हैं, थोड़े परपेचुअली बहुत लंबे टाइम तक जाते हैं, अनलाइक जो रिडीमेबल डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पे जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उसमें कोई मेंशनिंग ऑफ द टाइम नहीं होता कि आप इस टाइम तक आपको अपना जो आपका जो शेयर आपको डिबेंचर मनी है वो आपको वापस लेना है. तो देयर इज नो फिक्स्ड टाइम on which the company needs to pay the debenture holder. It becomes redeemable only when the company goes. अब यहाँ पे यही एक रीजन है जब वो डिबेंचर होल्डर अपना पैसा वापस ले पाएगा, वो अगर जब कंपनी लिक्विडेशन हो जाएगी तब वो पैसा उसको डिबेंचर को मिल जाएगा, डिबेंचर होल्डर को मिल जाएगा. अब क्या है, ये था परफॉर्मेंस बेस्ड. अब है आपका सिक्योरिटी बेस्ड. सिक्योरिटी बेस्ड में भी फर्दर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड आते हैं. सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, व्हेन द डिबेंचर आर इशूड बाय वे ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज. आप एक चार्ज का क्रिएशन कर देते हो ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी. ठीक है, एक सच डिबेंचर आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर. एक कंपनी के ही एसेट पे एक सर्टेन चार्ज क्रिएट कर देते हो, तो वो जो चार्ज होता है वो सिक्योर्ड डिबेंचर होता है. The charge created over the debenture may be fixed and may be floating. Market price के basis पे भी हो सकता है floating हो. Now, in accordance with the provision of the Companies Act, such charge created has to be registered with the registrar ऑफ द कंपनी. आरओसी के पास आपको 30 दिन का क्रिएशन, वो चार्ज जब क्रिएट करा गया है अपने आपने जिसको क्रिएट करा है किस पे, कंपनी के असेट्स पे जो चार्ज क्रिएट करा है वो चार्ज आपको वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. किसके साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. वो भी किसने, 30 दिन के अंदर अंदर जब वो चार्ज क्रिएट हुआ था. ओके, नेक्स्ट आता है. ओके, तो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी क्या है, फर्स्ट इज आपका अगर उसमें पहले से जो अमाउंट है जो चार्ज बेस्ड ऑन सिक्योरिटी. सिक्योर डिबेंचर वो होते हैं जो क्रिएट करा इशू करा जाता है बाय द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी. और जो चार्ज होता है वो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन द 30 days ऑफ इट्स क्रिएशन. किसके भी सामने रजिस्टर, किसके विद रूम विद इन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. यू हैव टू actually register that particular charge. The next one is unsecured debenture. When we talk about unsecured debenture, there it is unlike secured debenture. Unsecured debenture are issued by the company without the creation of any charge over the assets of the company. उस पे नहीं होता. So these debenture do not offer any protection. यहाँ पे unsecured में क्या होता है कि कोई protection यहाँ पे नहीं होती, जो वहाँ पे protection होती है. ठीक है, and to the in case the company is unable to pay the principal amount on the due date, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिली. अब यहाँ पर क्या है कि आपने वो चार्ज असेट पे ही क्रिएट कर दिया, तो इन केस सिक्योर डिबेंचर में अगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट बैक नहीं करी गई तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम उसमें क्या होगा, असेट के थ्रू उसको पेमेंट मिल जाएगी. ठीक है, बट अनसिक्योर डिबेंचर में ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, सिक्योर डिबेंचर में प्रोटेक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन किसके थ्रू मिल रहा है, असेट ऑफ द कंपनी के थ्रू मिल रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे लैक ऑफ प्रोटेक्शन है. लैक ऑफ प्रोटेक्शन है किसको, डिबेंचर होल्डर को. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज नाउ प्रायोरिटी बेस्ड पे क्या होता है. नाउ फर्स्ट इज आपका मॉर्गेज डिबेंचर. सेकेंड इज priority basis first mortgage debenture and then is the second mortgage debenture. First mortgage debenture क्या होता है, basically distinction of debenture based on priority can be called as
सब कैटेगरी ऑफ द सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर की ही सब कैटेगरी है, मतलब सब सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब जिसपे चार्ज क्रिएट करा गया था असेट्स पे, किसकी, कंपनी पे, राइट। तो सब कैटेगरी है यहाँ पे फर्स्ट मॉर्गेज। तो फर्स्ट मॉर्गेज आर दोज डिबेंचर विच हैज फर्स्ट प्रेफरेंस ओवर ऑल द अदर डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी। तो इसको तो सबसे पहले पेमेंट होगी। तो अगर कुछ जो फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर होते हैं पहले पेमेंट उनको मिलेगी और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स को बाद में मिलेगी। जब फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स आर ऑल पेड, देन पेड बैक, देन ओनली द सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर विल कम इनटू द पिक्चर। और इसी हिसाब से जो सेकंड मॉर्गेज जो है वो आपका थोड़ा सा क्या होगा, अपना लिक्विडेशन के टाइम पे अपना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। बट फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर दोज डिबेंचर व्हिच हैज फर्स्ट प्रेफरेंस, लाइक इट इज रिटन फर्स्ट प्रेफरेंस होता है ओवर ऑल द अदर डिबेंचर व्हिच आर इशूड बाय द कंपनी एंड सच प्रेफरेंस इज क्लेम्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ये लिक्विडेशन के टाइम पे ही उसको क्लेम करते हैं, जहां पे एसेट ऑफ द कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है क्रेडिट होल्डर्स पे। क्रेडिट होल्डर्स मतलब डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर क्या होता है? सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर जो होता है आपका, सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे सेकेंड प्रेफरेंस दी जाती है ओवर दी असेट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम, क्योंकि आफ्टर जो असेट्स कंपनी जब लिक्विडेशन पे जाती है तो उस टाइम पे सबसे पहले तो फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स को पेमेंट मिलेगी। आफ्टर दैट ओनली द सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर्स विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर दी फर्स्ट, ठीक है। तो ओनली अगर द फर्स्ट मॉर्गेज होल्डर्स आर सेटिस्फाइड, उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, तब सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स होल्डर्स तभी वो क्लेम करेंगे अपना अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्लेम करने के लिए फ्रॉम द कंपनी। और दोनों ही फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पिक्चर कब आते हैं? एक ही टाइम पे आते हैं जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होता है। लिक्विडेशन में सारे एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी किसको? फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर को, और सेकंड पे मिलेगी सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर होल्डर्स को, इस तरीके से मिलेगी। और किसका पेमेंट बैक होता है? पेमेंट होता है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का, और सेकंड में भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट का भी ही पेमेंट होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आपका बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी। इसमें भी आपके 3 टाइप्स हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, partially and non-convertible. Fully convertible debenture have the right to convert the debenture into equity shares. आप डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ द कंपनी एट फ्यूचर, किसी फ्यूचर डेट में। और ये कब ऑप्शन किसको दे रखा होता है? ये आपका ऑप्शन दे रखा होता है डिबेंचर होल्डर को, ये ऑप्शन दे रखा होता है, ठीक है। तो डिबेंचर तो हमेशा पैसा वापस लेते हैं, शेयर होल्डर्स पैसा वापस नहीं लेते हैं, और वो कभी भी अपना वो जो पैसा है उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उसके क्या बन सकते हैं? ओनर बन सकते हैं। The conversion ratio, the right of the debenture holders post conversion and the trigger date of conversions are defined at the time of issue of these debentures. पहले जब इशू ही कर रहे होते हैं डिबेंचर तभी ये सब चीजें डिफाइन कर दी जाती हैं। Partially convertible debentures can be divided into 2 parts. ये 2 टाइप्स में करते हैं। फर्स्ट पार्ट being the debentures which are convertible to equity share, एक जो कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इक्विटी शेयर में ऑफ द कंपनी। एंड द सेकंड पार्ट बीइंग नॉन कन्वर्टेबल, जिसको आप कन्वर्ट नहीं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर विच शैल रिडीम, कब होगा? जो एक्सपायर हो जाएगा टेन्योर, तभी वो नॉन कन्वर्टेबल आपको उसका कन्वर्ट कर सकते हो टू शेयर कैपिटल में। Now an option is given to the debenture holder to partially convert its debts into share of the company. So partially convertible debenture also called optionally कन्वर्टेबल डिबेंचर, और ये जो ऑप्शन किसको दिया जाता है? ये डिबेंचर होल्डर को ही दिया जाता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? जिनमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जाता डिबेंचर होल्डर को कि आप इसको डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दीज डिबेंचर्स गेट रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, अपने आप ही तभी रिडीम हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आपका लास्ट इसमें आता है विच इज बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर आते हैं। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर में नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ डिबेंचर्स एंड सारी बाकी जो डिटेल्स होती हैं परटेनिंग टू होल्डिंग आर एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंटर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। उसमें सारा रजिस्टर्ड डिबेंचर से रिलेटेड सारी चीजें एंटर करी जाती हैं। और इस केस में जो अगर डिबेंचर को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन डिबेंचर होल्डर टू अनदर डिबेंचर होल्डर, वो भी रिकॉर्ड करा जाता है इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर।
और इन द रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर, ये दोनों में ही उनको रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है, अनरजिस्टर्ड में क्या होता है, उसको बेयरर डिबेंचर बोलते हैं। तो कंपनी इसमें कोई मेंटेन नहीं करती अपने रिकॉर्ड्स को डिबेंचर से रिलेटेड, और ना ही जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है या जो फर्दर उसका जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब डिबेंचर होल्डर, एज अगेंस्ट द नेम रिटन ओवर सच। तो डिबेंचर क्या है यहाँ पे, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं ये वाले मार्केट में। अब जल्दी से इसके डिफरेंस कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? शेयर्स एंड डिबेंचर में शेयर्स का क्या होता है, ये शेयर ज्यादा ओनरशिप और कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये क्या होता है बॉरोड फंड्स होता है, ये ओनरशिप कैपिटल होता है। राइट्स में क्या होता है, शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स में मिलते हैं। रिस्क कितना होता है, शेयर होल्डर्स को रिस्कीएस्ट ओनर्स होते हैं, पैसा लगाया तो डूब गया तो डूब गया, प्रॉफिट होगा तो जितना प्रॉफिट होगा उतना पैसा आएगा, ठीक है। और फॉर एन इन्वेस्टर क्या होगा, डिबेंचर इज मस्ट रिस्की, क्यों, पॉसिबली द मोस्ट सिक्योर इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, ठीक है। ऑब्लिगेशन में शेयर होल्डर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी, एंड डिबेंचर होल्डर डू हैव एन ऑब्लिगेशन इन देयर फेवर, उनके फेवर में होता है ऑन दी ऑल दी एसेट, कि अगर कोई पेमेंट नहीं होगी जैसे सिक्योर्ड डिबेंचर्स में, अगर पेमेंट नहीं हो पाई उनको टाइम तक, तो एक पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट कर देते हैं आपका किस पे, एसेट्स ऑफ द कंपनी पे, ठीक है। रिटर्न भी क्या है, शेयर होल्डर को रिटर्न मिलता है इन डिविडेंड फॉर्म में विच कम आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से जो डिविडेंड निकलता है वो शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स के बेसिस पे उनको मिलता रहता है। डिबेंचर होल्डर्स आर रीपेड विद रिटर्न्स विद इंटरेस्ट, उनको मिलता रहता है, विच कैन बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग इवन व्हेन द कंपनी इज अर्न्ड नो प्रॉफिट, तब भी उनको मिलता रहेगा, तो इसमें रिस्क फैक्टर भी कम है। नाउ लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स आर गिवन द लास्ट प्रायोरिटी इन द हायरार्की, शेयर होल्डर को लास्ट मिलता है, और डिबेंचर होल्डर्स की प्रायोरिटी गेट द प्रायोरिटी एज दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, तो ये उनको सबसे पहला प्रेफरेंस इनफैक्ट मिलता है। डिडक्शन में सिंस डिविडेंड कम्स आउट ऑफ द प्रॉफिट इट इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन, में कोई है नहीं। नाउ सिंस इंटरेस्ट पेमेंट इज एन एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। कन्वर्जन में शेयर्स आर नॉन कन्वर्टेबल, एंड विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो अपने शेयर्स को, वो अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफरिंग। कंपनीज जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, ये आपका कंपनीज को needs funds to sustain a business, we know, and these funds can be required for a long term and short term purposes, and to suffice their long term needs companies क्या करती हैं, issue करती हैं shares को, that we have understood, and issue of shares can be done in three ways, या तो private placement private issue of shares कर दो, या publicly shares को issue कर दो, या तो issue कर दो share को जो आपके किसी कंपनी के पास अगर कोई existing shareholders हैं और नई कंपनी खोल रहे हो तो आप उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में ही अपने इस शेयर्स को इशू कर दो। नेक्स्ट इज सेक्शन 23 जो हमारा है वो मेंशन करता है पब्लिक इश्यूज को, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स को। तो एज अ वे ऑफ रेजिंग फंड थ्रू पब्लिक, तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग और मार्केटिंग ऑफ शेयर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक, इसमें क्या करते हो आप, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करते हो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, गेटिंग लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आप इसमें पब्लिक में हो तो आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड हो गया आपकी कंपनी। एडवांटेज क्या है, नो क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, बार बार नहीं करोगे एक्सेप्ट वन जब आपकी कंपनी लिक्विडेशन में हो, तो इसलिए रिस्क बहुत कम है। देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है कोई, तो इसी वजह से कोई आपके पास लेस फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। इनहैंसिंग शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स, आपके और नए नए शेयर होल्डर्स आते रहेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी है आराम से, ठीक है। सिक्योरिटीज क्या है, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एट स्टॉक एक्सचेंज, तो लिस्टिंग भी हो रही है आपकी, स्टॉक एक्सचेंज भी आपका काम हो रहा है, और लिक्विडेशन ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी लिक्विडेटेड बेटर ऑल्सो। डिसएडवांटेज क्या है आपका, कि ये है कि प्रोसीजर इज क्वाइट लेंदी होता है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम जाता है, और ये मतलब इस कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, और टाइम के साथ साथ ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। इट इज एक्सपेंसिव एज देयर इज अ हायर डिविडेंड एक्सपेक्टेशन, जिसमें आप टैक्स डिडक्टेबल भी होता है, नॉट टैक्स डिडक्टेबल। कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। There is a delusion of control since capital base might be expanded and new shareholders public are involved, तो एक कंट्रोल इतना होता नहीं है। प्राइवेसी बहुत कम होती है सिंस वो प्राइवेट पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, तो लेस प्राइवेसी होती है, वो ट्रांसपेरेंटी क्योंकि बनानी पड़ती है। स्क्रूटनी परफॉर्मेंस रखनी पड़ती है क्योंकि एट लार्ज आउट एंड आउट पब्लिक इसको स्क्रूटनाइज कर रही होती है। टेक ओवर ऑफ द कंपनी ये भी हो सकता है, ये क्योंकि कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी होती है, आप बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हो।
इफेक्ट ऑफ स्पेक्युलेटिव अटैक्स होते हैं, सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी मे बी सब्जेक्ट टू द स्पेक्युलेटिव अटैक्स आल्सो। अब इससे कुछ रिलेटेड इसके हमारे पब्लिक ऑफरिंग से रिलेटेड 3 प्रोविजंस हैं जिसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेबी रूल्स में और कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, और एक हमारा अलग से दिया हुआ है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में, और आरबीआई रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एनआरआई इक्विटी पार्टिसिपेशन में। तो इनमें आपका पब्लिक ऑफरिंग से रिलेट दिया हुआ है, ऑल्दो ये आपको इन डिटेल में इसमें जाने की जरूरत है नहीं, यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ रीड ऑन इट। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट ऑफरिंग्स में क्या है कि सबसे पहले बात तो कंपनीज रूल्स 2014 के 14 सब क्रॉस 2A में है, स्टेट करता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करेंगे कौन, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ। तो ये स्पेशल प्राइवेट ऑफरिंग्स, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, ये स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास होता है, जो कौन करते हैं, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ही पास करते हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं, जिसको मतलब कि आप कभी भी डिबेंचर्स को शेयर में नहीं कर सकते कन्वर्ट, अ स्पेशल रेजोल्यूशन 1 a year for all the offers during the year is sufficient. The offer of private placement is made only to selected person, जिसको सेबी रिकॉग्नाइज करती है, उन्हीं को ही ये आप इसको कर सकते हो। Not more than 50 of these people can participate, जिनको सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सेबी हैं उनमें से भी आप सिर्फ 50 से ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। एंड एनी कंपनी हु इंटेंड टू मेक एन ऑफर, मतलब प्राइवेट ऑफर टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटी नीड्स टू सेंड प्लेसमेंट ऑफर देना पड़ेगा, फॉर्म देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फॉर्म PAS, जिनको किनको जो भी आइडेंटिफाइड होते हैं लोग, इधर इलेक्ट्रॉनिक मोड और राइटिंग मोड। देन नो पर्सन अदर देन द एड्रेसी कैन फिल अप द एप्लीकेशन, सिर्फ एड्रेस ही उसको फिल करेगा। कंपनी को पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि प्लेसमेंट ऑफर किन किन को भेजा गया है, और कंपनी कैन नॉट एडवर्टाइज पब्लिकली या फिर अपने एजेंट के थ्रू या कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके थ्रू भी अपने कोई प्राइवेट इश्यूज, प्राइवेट ऑफरिंग्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकती। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट ऑफरिंग्स हो गई हैं। So with this, we have finished our types of capital. We have finished share and debentures. That with the share types of capital, we have also covered the what is the meaning of capital and what types of capital. Then share, types of share, equity and preference, debenture and types of debentures. Then we have covered public and private offerings as well. So we have finished this particular session also, unit also. So if you want these notes, these are very well uploaded. मैंने इनको, I have already uploaded these notes in your course structure. You can go through it. You can actually access it. You can read these particular notes. And if you want to wish to make your own notes, that also. Any doubts, please mail to us. We have mentioned the mail ID at support@legalsticks.com. You can mail it, or you can even give us a call. We will get back to you. And for your queries, we can even keep a doubt session for any of these sessions which you have a doubt in. Thank you so much. With this, I end up, and tomorrow we will start with the second, with the 4th session. Thank you so much.